Short meditation. So we shall start with a short meditation. Today we will do meditation on mental cleansing. Take a deep breath in and slowly breathe out. Let your body relax. Let your thoughts settle. Now gently bring your attention to the center of your forehead, a point of light. I, the being of light, the soul, I'm sitting here, peaceful and aware. As I observe my mind, I see many thoughts passing by, some pure, some heavy, some unnecessary, just like clouds floating in the sky. I don't fight them, I simply watch. With every breath, I become lighter, freer. Now imagine a gentle golden light descending from above. The light of the Supreme Being, pure, peaceful, powerful. This divine light touches my mind and begins to cleanse it. All old dust of negativity, worry, fear, resentment, guilt begins to dissolve. It's as if the mind is being washed in a shower of pure vibrations. My mind becomes clear, calm, refreshed. Old memories lose their sting. Unwanted thoughts melt away. There is only peace, a soft silence. In the silence, I listen to my own inner voice. I am pure. I am peaceful. I am light. Repeat gently in your mind. My mind is a sacred space. Only pure and positive thoughts live here now. Now visualize your mind as a beautiful white lotus, unfolding petal by petal, clean, pure, open to divine energy. As the golden rays continue to flow, your mind becomes crystal clear, filled only with peace, love, and clarity. You are now mentally clean, emotionally light, spiritually strong. Stay in this awareness for a few moments and let this purity spread into your thoughts, words, and action. Slowly take a deep breath. Feel the calmness in every cell of your body and gently open your eyes with a fresh, light, and pure mind. Okay, then we shall start the reading now. I would request Anika sister to please share the screen.
So, in the last session, we had started chapter 3, Where Does It Come From? And the author was explaining the past has no power over me. So, today we will start from mental house cleaning. Now, in the time to examine our past a bit more, to take a look at some of the beliefs that have been running us. So author is saying थोड़ा और हम पास्ट के बारे में देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो अब तक हमें हमारी लाइफ को चला रहे हैं. Some people find this part of cleansing process very painful, but it need not be. We must look at what is there before we clean it out. Okay. So यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं कि कई लोगों को बहुत दर्द होता है जब वो अपने पास्ट में देखते हैं, लेकिन ऑथर ये बता रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए. हमें ये देखना जरूरी है कि क्या चीजें हैं ताकि हम उसको साफ कर पाए. If you want to clean a room thoroughly, you will pick up and examine everything in it. Some things you will look at with love and you will dust them or polish them to give them new beauty. Some things you will see that need refinishing or repair, and you will make a note to do that. Some things. My voice is audible to everybody, right? Is there some issue in my voice? नो सिस्टर, योर वॉइस इज ऑडिबल. आपकी आवाज आ रही है क्लियर. Okay, okay, okay. So we shall continue the reading. यहाँ पे ऑथर हमें एक रूम का एग्जाम्पल दे रहे हैं. जब हम रूम सफा करते हैं, साफ करते हैं, तो हम एक एक चीजें उठाते हैं. ऐसे अभी रिसेंटली हमने दिवाली पे भी किया, हमने अपने घरों की साफ सफाई की. तो हम एक एक चीजें देखते हैं कि क्या जरूरत की चीज है, जिसको और पॉलिशिंग की जरूरत है, क्या कुछ ऐसा है जो टूट गया है जिसको रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि हर चीजें फेंकने की नहीं होती. तो वही चीज ऑथर समझा रहे कि हमें भी पास्ट में देखने में डरना नहीं है. Some things will never serve you again and it becomes time to let those things go. अब यहाँ पे भी बहुत समझने की बात है कि कई चीजें, स्पेशली अगर हम कपड़ों को देखें या पुरानी पुरानी चीजें भी हमें रखने की आदत होती है, जबकि हमें पता है हम कभी भी उसको फ्यूचर में काम में नहीं लाएंगे. स्टिल बस आदत है तो हम रखे हुए रहते हैं उसको. तो जब चीजों के साथ हम ऐसा करते हैं तो ये स्थूल हो गई, लेकिन हम सूक्ष्म में भी, अपने माइंड में भी पुराने पैटर्न्स, पुराने बिलीव्स वो पकड़ के ही रखते हैं, जबकि हमें पता है कि वो चीजें, वो बिलीव्स और हमें फ्यूचर में काम नहीं आएगी. दे आर नॉट हेल्पिंग अस, दे आर कीपिंग अस स्टक इन आवर लाइफ, बट स्टिल वी रिफ्यूज टू लेट देम गो. तो यहाँ पे ऑथर वही समझा रहे हैं. और old magazines and newspapers and dirty paper plates can be dropped into the waste basket very calmly. There is no need to get angry in order to clean a room. हम कभी भी कोई रूम सफा करते वक्त गुस्सा नहीं होते ना बहुत जोर से. हाँ, कभी बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है तो हम सोच सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, तब हमें शायद गुस्सा आ भी जाए. लेकिन ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं ये चीज बोल के कि हमें माइंड को क्लीन करते समय गुस्सा नहीं करना है खुद के ऊपर, चाहे वो कैसी भी चीजें हो. हमें डिटैच्ड विथ लव ही देखना है. It is the same thing when we are cleaning our mental house. There is no need to get angry just because some of the beliefs in it are ready to be tossed out. Let them go easily as you would scrap bits of food into the trash after a meal. तो ऑथर यहाँ पे कितना अच्छे से समझा रहे कि हम लोग को ना इजीली लेट गो करना सीखना है.
वैसे ही जैसे कि कुछ अगर खाने के कुछ दाने रह जाते हैं हमारे प्लेट में खाने के बाद, और हम कैसे उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, अगर कुछ ऐसे जैसे कुछ मिर्ची का टुकड़ा हो गया या फिर जो चीज हम नहीं खा सकते वैसा कुछ हो गया, तो हम उसको लेट गो करते हैं ना इजीली, हम सोचते नहीं है डस्टबिन में डालने से पहले। तो हम अपने पुराने बिलीफ्स को लेट गो करने से पहले इतना क्यों सोचते हैं? Would you really dig into yesterday's garbage to make tonight's meal? तो यहाँ पे भी ऑथर ने कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या हम अपने गार्बेज की तरफ कभी भी देखते हैं जब हम आज रात का मील प्रिपेयर करना चाहते हैं, या कभी कोई भी मील जो फ्रेश मील होता है हम प्रिपेयर करते हैं, तो उससे पहले क्या हम गार्बेज की तरफ ध्यान देते हैं? दिस इज सो आई ओपनिंग थिंग विच ऑथर इज टेलिंग बाय गिविंग अस दिस एग्जाम्पल, चाहे रूम का हो चाहे मील का हो। Do you dig into old mental garbage to create tomorrow's experiences? Now compare. हम ये चीज तो कभी नहीं करते कि हम ओल्ड गार्बेज डस्टबिन में जो हम डाल चुके हैं उसको हमारा फ्रेश मील बनाते समय पे कभी नहीं सोचते कि हम पुरानी चीजों को देखें। लेकिन जब हम अपना नया कल तैयार कर रहे हैं, we are preparing for new tomorrow, we are in the present, we keep on looking back to the old mental garbage. तो ये चीज है, if a thought or belief does not serve you, let it go. There is no written law that says that because you once believed something, you have to continue to believe it forever. ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर ने बोली, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हमने एक चीज की धारणा बना ली, अब हम सोचते हैं कि हम उस धारणा को पकड़ के ही रखेंगे, जैसे कि वो कोई अच्छी हैबिट है। हाँ, अगर कोई अच्छी धारणा है उसको पकड़ के रखना तो सुपर्ब है, उसको तो लास्ट तक पकड़ के रखना है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं हम समझ गए कि ये बिलीफ अच्छी नहीं है, स्टिल क्योंकि हम बिलीव करते आए हैं ना, तो हम बिलीव करना चाहते हैं उसको, कहीं ना कहीं अंदर एक आदत होती है नहीं छोड़ने की। तो इसीलिए ऑथर ये समझा रहे हैं दैट इवन इफ यू बिलीव समथिंग टू बी करेक्ट, somehow it was serving you in the past, but when it is not serving you in the present, then you have to leave it. Let's look at some limiting beliefs and where they came from. Limiting belief, I'm not good enough. Where it came from? A father. अब यहाँ पे ऑथर ना ट्रू एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो उन्होंने काउंसलिंग सेशंस में एक्सपीरियंस किया है। कुछ लिमिटिंग बिलीव्स कई जनों के होते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, हम हमेशा ये सोचते कि हम इतने अच्छे नहीं हैं। So where did it came from is a real example. A father who repeatedly told him he was stupid. He said he wanted to be a success so his daddy would be proud of him. But he was riddled with guilt, which created resentment, and all he could produce was one failure after another. Daddy kept financing businesses for him, and one after another they failed. He used failure to get even. He made his daddy pay and pay and pay. Of course, he was the biggest loser. तो यहाँ पे ऑथर ये समझा रहे कि किसी का ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके पापा उनको हमेशा कहा करते थे कि आप स्टूपिड हो, आप स्टूपिड हो। तो ये चीज से उनको एक लिमिटिंग बिलीफ हो गया था कि वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब उस रिजल्ट में क्या हुआ, दो वो चाहते थे कि वो अपने पापा को सक्सेसफुल होके दिखाए ताकि उनके पापा उनके ऊपर प्राउड फील करे, लेकिन उनके अंदर गिल्ट इतना था कि वो रिजेंटमेंट क्रिएट हुआ, उनका खुद के प्रति एक सेल्फ हेट्रेट क्रिएट हुआ। तो जिस वजह से वन फेलियर आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फेलियर ही होता गया। दो उनके पापा उनके बिजनेस को फाइनेंस करते गए, स्टिल एवरी टाइम ही फेल्ड, his daddy kept on paying him, but he was a biggest loser. लिमिटिंग बिलीफ और एक, अब दूसरा पढ़ेंगे, लैक ऑफ सेल्फ लव। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? ट्राइंग टू विन डैडीज अप्रूवल।
The last thing she wanted was to be like her father. वो अपने पापा के जैसा बनना चाहती थी. They couldn't agree on anything and were always arguing. She only wanted his approval, but instead all she got was criticism. Her body was full of pains. Her father had exactly the same kind of pain. She did not realize her anger was creating her pain, just as her father's anger was creating pain for him. तो यहाँ पे है एक डॉटर अपनी डैडी का अप्रूवल जीतना चाहती थी. हम सब चाहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें अप्रूव करें. हम जो भी चीज करते हैं हम उनका अप्रूवल अगर मिल जाता है हमें, तो हम वो चीज करने में और 100% दे पाते हैं. तो ये भी एक बिलीफ हो गया कि अप्रूवल मिलेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे. तो यहाँ पे लेकिन पापा और बेटी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था. कभी वो एक दोनों दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करते थे. तो इस वजह से बेटी के भी बॉडी में बहुत सारे दर्द होते थे एंड पापा के भी बॉडी में बहुत सारे दर्द होते थे. एंड दोनों को ही ये चीज नहीं पता है कि जो एंगर क्रिएट हो रहा है वो एंगर क्रिएट होने की वजह से वो खुद ही अपने आप को पेन में रख रहे हैं. अब थर्ड वाला लिमिटिंग बिलीफ, लाइफ इज डेंजरस. ये एक लिमिटिंग बिलीफ था किसी का. वेयर डिड इट केम फ्रॉम? अ फ्राइटेंड फादर. सी, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें ये रियल वाले जो भी ऑथर हमें दे रहे हैं, चाइल्डहुड में हमने हमारी कैसे अपब्रिंगिंग हुई या हम कैसे माहौल में रहे या हमारे पेरेंट्स हमारे तरफ किस तरह से व्यवहार करते थे, वो चीज पूरा इनबिल्ट हो जाता है. एंड वो एक पैटर्न बनता है. अब जब हम बड़े होते हैं और हमें जब रियल में कुछ करना होता है हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैटर्न्स हमारे ऊपर वर्क करता है बहुत ज्यादा, जिससे हम बिलीव क्रिएट कर लेते हैं. तो यहाँ पे है अ फ्राइटेंड फादर का. अनदर क्लाइंट सॉ लाइफ एज ग्रिम एंड harsh. It was difficult for her to laugh, and when she did, she would come she would become frightened that something bad would happen. ऐसे कई बार होता है. कई बार हम जब बहुत खुश हो जाते हैं तो हम झट से बोलते हैं कि इतना हंसो मत, कुछ बुरा हो जाएगा. मुझे याद है मेरा मेरा भी एक फ्रेंड है, जब हम साथ में से बैठ के हंस बोल रहे थे तो ही सेड मी सडनली कि इतना खुश नहीं होते हैं, फिर कुछ हो गया तो. तो दिस इज द बिलीफ विच मेनी ऑफ अस होल्ड. तो यहाँ पे भी ये एक एग्जाम्पल है कि शी वुड बिकम शी इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू लाफ. ये कितना मुश्किल मेंटल कंडीशन है, इतना डर मन में कि हंसने से भी वो डिफिकल्ट फील करती थी. She would become frightened that something bad would happen. She has been reared with the admonition, don't laugh or they might get you. तो वो ऐसे ही पैटर्न्स उसका बिल्डअप हुआ है कि ज्यादा हंसो मत. तो वही बिलीफ उसके मन में बैठ गया that life is dangerous. Now, fourth limiting belief which author is telling is about I am not good enough. Where did it come from? Being abandoned and ignored. It was difficult for him to talk. Silence had become a way of life for him. He had just come off drugs and alcohol and was convinced that he was terrible. I discovered his mother had died when he was very young and he had been reared by an aunt. The aunt seldom spoke except to give an order, and he was brought up in silence. He even ate alone in silence and stayed quietly in his room day after day. He had a lover who was also a silent man, and they spent most of their time alone in silence. The lover died, and once again he was alone. So इधर एक एग्जाम्पल ऑथर ने दिया जहाँ पे एक बच्चे की मम्मी जो है वो जब वो छोटा सा था तभी उनका डेथ हो गया था.
एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन आंट। तो वो आंट जो है वो तभी उससे बात करती थी जब कुछ ऑर्डर देना होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा चाइल्डहुड उसका साइलेंस में गया। एंड व्हेन ही फाउंड हिज लव, वो भी बहुत साइलेंट में ही थे। एंड बोथ वर वेरी साइलेंट। एंड तो उनके लिए बात करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था जब वो ऑथर से मिले। तो वही ऑथर इधर बता रहे हैं कि ही हैड अ बिलीव दैट ही इज नॉट गुड इनफ। Now, some exercise which author is giving us: negative messages. The next exercise we do is to get a large sheet of paper and make a list of all the things your parents said were wrong with you. What were the negative messages you heard? Give yourself enough time to remember as many as you can. A half hour usually works well. तो यहाँ पे ऑथर बता रहे कि एक लार्ज शीट ले लो एंड जो भी आपके पेरेंट्स आपको बचपन में बोला करते थे, इवन यहाँ पे तो ऑथर पेरेंट्स कह रही है, अगर कुछ और भी टीचर्स या फ्रेंड्स या कजिन या सिबलिंग्स कहीं पे भी कोई एग्जाम्पल में सूट करता हो अगर, तो जहां से भी हमें नेगेटिव मैसेजेस मिले हैं अपने बचपन में उस सब को लिख डालो। एंड ऑथर कह रहे हैं कि आधा घंटा काफी होता है इस एक्सरसाइज के लिए। वॉट डिड दे से अबाउट मनी? क्या बोलते थे आपको मनी के बारे में? कि आप ज्यादा कमा नहीं पाओगे, आपके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ बोला था कभी किसी ने? वॉट डिड दे से अबाउट योर बॉडी? आप मोटे हो, नाटे हो, काले हो, या कैसे हो? बॉडी के ऊपर तो कई जने बहुत जल्दी कमेंट भी कर देते हैं। तो क्या बोलते थे आपको अपने बॉडी के बारे में? वो याद करो, याद करके मनी के बारे में क्या बोलते थे, बॉडी के बारे में क्या बोलते थे, उसको लिख डालो। वॉट डिड दे से अबाउट लव एंड रिलेशनशिप? कि आपको कैसा शादी के बाद कैसा मिलेगा? कई बार हम कह देते हैं ना, अरे ये तो नाटी है तो इसको भी नाटा ही मिलेगा, अरे ये तो काली है तो इसको काला ही मिलेगा, ऐसे करके कई चीजें कमेंट में हम बोल देते हैं, वो बच्चों के दिमाग में रह जाता है। तो लव लाइफ के बारे में आपने क्या सुना बचपन में, रिलेशनशिप्स के बारे में? What did they say about your creative talents? कई बार हम ऐसे सुनने को मिल जाता है ना कि अरे इसमें तो कोई टैलेंट नहीं है, ये गधा है गधा, ये तो गधा ही रह जाएगा। ऐसे करके कई कमेंट्स ना इंटेंशनली नहीं होता है, बट स्टिल वो इतनी आदत पड़ गई है सबकी, लेकिन बच्चों के दिमाग में वो इनबिल्ट हो जाता है। तो हर छोटी छोटी बात जो भी आप रिकॉल कर पाते हैं वो सब रिकॉल करके एक पेज में लिख दीजिए। नो जजमेंट अबाउट एनी पर्सन, अदर पर्सन, लेकिन वो नेगेटिव मैसेजेस मिले हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट कर लिया है खुद में, खुद की हीलिंग के लिए वो लिखना जरूरी है। If you can, just look objectively at these items and say to yourself, so that's where that belief came from. तो जैसे कि ये सब beliefs है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, लैक ऑफ सेल्फ लव, या फिर लाइफ इज डेंजरस, वो सब beliefs हम में भी है। कुछ ना कुछ तो होगा, आई एम नॉट गुड इनफ वाला बिलीफ मुझ में है। तो अगर मुझ में है तो ये कैसे आया, नेगेटिव मैसेजेस कौन से मिले, उसको पुट ऑन करके राइट डाउन करके मुझे क्लैरिटी होगा कि अच्छा ये बिलीफ मेरा यहाँ से डेवलप हुआ है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। Now let's take a new sheet of paper and dig a little deeper. What other negative messages did you hear as a child? अच्छा, तो हमने जो शुरू में ऐसे कहा ना कि पेरेंट्स के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरों से भी मिला है तो वो भी लिखिए। तो यहाँ पे ऑथर ने भी वो चीज बताया है कि पेरेंट्स के साथ उन्होंने एक अलग शीट पे लिया एंड दूसरे शीट पे अब लिखो कौन से नेगेटिव मैसेजेस एज अ चाइल्ड यू हर्ड फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स, फ्रॉम योर चर्च। जहां भी जाते थे, कहाँ कौन किसने क्या बोला आपको, जो एक बिलीफ बना होगा वो देखना जरूरी है।
Write them all down. Take your time. Be aware of what feelings are going on in your body. What you have on these two pieces of paper are the thoughts that need to be removed from your consciousness. These are the very beliefs you have that are making you feel not good enough. तो कौन से इवन नेगेटिव मैसेजेस जो हम सेल्फ को भी रिपीटेडली देते रहते हैं, वो सेल्फ नैरेटिव जो हमारा पूरा दिन चलता है। पेरेंट्स का लिखना है एज पर ऑथर एंड रिलेटिव टीचर्स फ्रेंड्स, सारा जो ऑथर ने बताया वो। एंड थर्ड, it would be really great if we see what are the narrative which we keep speaking about ourselves। तो वो सारा लिख के वो सारा रिमूव करना है, क्योंकि वो सारे जो भी हैं बिलीव्स हमारे, वो ही क्रिएट हो गया आई एम नॉट गुड इनफ वाले बिलीफ में, जो भी हम अपने आप को बोलते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। If we were to take a 3-year-old child and put him in the middle of the room, and you and I were to start yelling at the child, telling him how stupid he was, how he would never do anything right, how he should do this and shouldn't do that, and look at the mess he made, and maybe hit him few a times, we would end up with a frightened little child who sits docilely in the corner or who tears up the place. The child will go one of these two ways, but we will never know the potential of that child। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक 3 साल का बच्चा, उसको रूम के मिडल में खड़ा कर दो और हम और आप मिलके उस बच्चे को जोर जोर से डांटने लग जाए कि कितना स्टूपिड है, कुछ भी सही से नहीं कर सकता, कभी कुछ सही से नहीं किया है अब तक, और कुछ एक दो बार हम दो चार चांटे भी लगा दें, तो वो बच्चे का हालत क्या होगा। हम सोच सकते हैं ना उसको कि कैसे वो बच्चा एकदम स्ट्रेंथ पूरा उसमें से खत्म हो जाएगा। अगर बच्चे तो और भी सेंसिटिव होते हैं। हमने पहले भी ऑथर ने ये समझाया था कि अगर बच्चा को प्यार ना मिले तो ही वुड डाई, वो अनलव फील करके, इवन इट वुड बी अ सिचुएशन कि वो उनकी उसकी डेथ हो जाए, वो सिचुएशन भी आता है। लेकिन बड़े होते होते हमें ना प्यार ना पाने की आदत हो जाती है, तो हम उतने फिर हार्ड हो जाते, उतने सेंसिटिव नहीं रहते। लेकिन अंदर ही अंदर वो पैटर्न्स काम करते रहते हैं, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि फ्राइटन हो जाएगा वो बच्चा और वो रोने लग जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इफ वी टेक द सेम लिटिल चाइल्ड, अब उसी बच्चे को लें एंड टेल हिम हाउ मच वी लव हिम, हाउ मच वी केयर, दैट वी लव द वे ही लुक and love how bright and clever is he, that we love the way he does things, and that it's okay for him to make mistakes as he learns, and that we will always be there for him no matter what. Then the potential that comes out of that child will blow your mind। Now see what author is explaining। उसी बच्चे को हम अगर लें, उसको बहुत सारा प्यार करे, केयर करे, उसको बोले कि वो कितना ब्राइट है, कितना क्लेवर है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, एंड कोई बात नहीं अगर गलती हो भी गई तो हम उसके साथ हैं नो मैटर व्हाट। अगर हम वैसा बच्चे को प्यार जताएं, एक्सप्रेस करें, तो उस बच्चे की जो पोटेंशियल निखर के आएगी, वो हमारे सोचने के भी बाहर होगी। तो ऐसी शक्ति होती है एक्सेप्टेंस प्यार में, कि वो जैसे दिख रहा है, एक तो लुक को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इन द प्रेजेंट टाइम ऑल आर सो मच ऑफ लुक कॉन्शियस। तो लुक को अप्रिशिएट करो, सबको बोलो कि अरे आप तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो वो कैसे खुश हो जाते हैं बिल्कुल। तो लुक को अप्रिशिएट करना, या जैसे भी वो काम कर रहे हो उस काम को अप्रिशिएट करना, तो उससे निखर जाएगा वो सामने वाला बंदा।
Each one of us has a 3-year-old child within us. Now author came to main point कि हम बड़े होते होते अनसेंसिटिव जरूर होते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर वो चीजें काम कर रही होती है, अपनी नेगेटिव चीजें हमें इफेक्ट कर रही होती है। बस बच्चा क्या करता है, वो एक्सप्रेस कर देता है फटाक से, फ्राइटन होके या रो के, और हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। So each one of us has a 3-year-old child within us, and we often spend most of our time yelling at the kid in ourselves. तो तूने आज ऐसे नहीं किया, हम खुद ही खुद के साथ येल करते रहते हैं, डांटते रहते हैं खुद को, यार तूने ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, फिर से ये गलती कर दी, ये वो पता नहीं कितना कुछ सुना देते हैं। आज मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं पूरे दिन ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपना 100% दूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैंने क्या मार्क किया है अपने सेल्फ नैरेटिव में, मेरी बहन ऐसे कह रही थी कि वो खुद को ये बोलती रहती है, आज भी ये नहीं किया तूने, आज भी ये नहीं किया, आज ये कमी रह गई। फिर वो खुद को समझाती है कि यार तू ये तो कभी नहीं देखती कि तूने क्या क्या किया है। तो वो चीज है कि हम क्या करे हैं कंप्लीट, वो हम नहीं देखते, लेकिन हमने क्या नहीं किया उस पे हम खुद को डांट देते हैं। देन वी वंडर व्हाई आवर लाइफ्स डोंट वर्क। इफ यू हैड अ फ्रेंड हु वाज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग यू, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी एक फ्रेंड थी बचपन में, वो हर बात में ना गुस्सा कर देती थी या हर बात में क्रिटिसाइज कर देती थी। एट प्रेजेंट हम और ज्यादा बात नहीं करते, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज बैठ गया है कि यार ये तो अभी क्रिटिसाइज करेगी, छोड़ दो ना, जाने दो। वुड यू वांट टू बी अराउंड दैट पर्सन? इट्स रियली अ बिग नो, कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता रहे तो हम उसके पास नहीं रहना चाहेंगे। Perhaps you treated this way as a child, and that is sad. And this is so important कि सेकेंड पर्सन तो यार कभी महीनों में, कभी कुछ सिचुएशन में एक दो लाइन क्रिटिसाइज कर देता है, हम वो एक दो लाइन को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन पूरा दिन 24/7 हम अपने खुद के साथ रहते हैं, हम क्या बोलते हैं खुद को। तो ऑथर यही बोल रही है कि हम तो एज अ चाइल्ड खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एंड ये एक सैड थिंग है। However, that was a long time ago. And if you are now choosing to treat yourself in the same way, then it is sadder still. चलो ये तो अब हो गई कल की बात, लेकिन अभी भी अगर आप यही चूज करते हो कि सेम वे में खुद को क्रिटिसाइज करते रहो, तो ये सैड नहीं, अब तो ये सैडर है फिर। So now, here in front of us, we have a list of negative messages we heard as a child. How does this list correspond with what you believe to be wrong with you? Are they almost the same? Probably yes. नेगेटिव लिस्ट कौन सा है जो ऑथर कह रहे हैं? आई थिंक वो नीचे आएगा, ब्लेमिंग योर फैमिली, ये सब जो लिखा है। या फिर शायद ऑथर ये कह रहे हैं जो नेगेटिव मैसेजेस हमने खुद लिखे ना एनालाइज करके, जो हम अब अपने घरों में करेंगे, पेरेंट्स से जो मिला है, जो रिलेटिव से मिला है, और जो सेल्फ हम अपना खुद को देते रहते हैं। तो ऑथर वो चीज बोल रही है कि अब सारे जो नेगेटिव मैसेजेस आपने सुने एज अ चाइल्ड, अब आपने लिख लिए हैं, वो आपके सामने हैं। तो ऑथर कह रही है कि हाउ डज दिस लिस्ट कॉरेस्पॉन्ड विथ व्हाट यू बिलीव टू बी रॉन्ग विथ यू। और जो भी बिलीव है हमारे, या जो भी हम रॉन्ग है हमारे साथ, हमें पता चल रहा है वो लिस्ट से कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, चेक करो। आर दे ऑलमोस्ट द सेम? प्रोबेबली यस। हम देखेंगे कि जो जो रॉन्ग है ना हमारे साथ, वो उस लिस्ट से मिलता जुलता है, उस लिस्ट में उसका सोल्यूशन आ जाएगा। We base our ओम life script शांति, on our सॉरी सिस्टर, अभी हाँ एक्चुअली जी हो सिस्टर, गया हाँ है जी। ऑलमोस्ट टाइम ना, तो आई थिंक हाँ आगे हाँ फिर जी। बाद में कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन। हाँ जी, बस एक्चुअली 3-4 मिनट्स ही रह गए अभी तो। हाँ जी, आप लोगों का कुछ टेक अवे है तो प्लीज शेयर कीजिए।
तो पर्सनली आज हमें फिर ये हेलो। करना है सबको। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। किसने बोला? करुणा शांति सिस्टर, हाँ जी सिस्टर। सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। आज पता नहीं बीच में ब्लूटूथ में क्या आवाज हो गई थी कि सुनाई नहीं दे रहा था आपका सेशन, लेकिन वो वाले पेजेस रीड करते करते ये जो एक्सरसाइज दी गई थी ना, एक्सरसाइज नेगेटिव मैसेजेस, क्योंकि हाँ आपकी आवाज जी। तो सुनाई दे नहीं रही थी। बीच में मेरे हाँ ही जी। ईयरफोन के कनेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये अच्छा एक्सरसाइज अच्छा। कर लिया बैठे बैठे। ओ, ओके ओके, तो आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया खुद के लिए? हाँ अरे हाँ, वाह। किया ना। और उसमें ऐसे लिखा था कि जैसे ये सारी चीजें, जैसे स्टार्टिंग में ये था ना, समझाया गया था कि अगर हम कोई चीज को क्लीन करते हैं, किसी रूम को, तो जो डस्ट है उसको निकालते वक्त हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसको इजीली हम लेट राइट। गो कर सकते हैं। तो ये यस जो यस। थॉट्स आ रहे थे ना उस वक्त, जो फीलिंग आ रही थी कि ऐसा ऐसा इसने इसने बोला, लेकिन वो हाँ। ना फीलिंग फिर ना, मतलब उसकी वजह से हमें अपने अंदर में थोड़ी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है। पर आज एक चीज नोटिस किया, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही एक्सरसाइज की ना, इस वजह से ना थोड़ी कम वो वाली फीलिंग्स आई लिखते हुए। वरना हम्म। ये जो चीजें हैं, अगर इतनी सारी चीजें उसमें से एक दो चीज भी कभी कभी याद आ जाती थी तो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। यस यस। तो मेरा तो ये यस। टेक अवे है, जैसे बीच में वो नॉट गुड इनफ वाला एक और एक्सरसाइज था मिरर वाले से पहले, तो वो करने के वक्त ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके बाद में इस बुक को खोल करके मैंने कोई एक्सरसाइज की नहीं थी। पर मेरा बिगेस्ट टेक अवे ये है कि एक बार स्टार्ट कर दिया है ना, तो इसको पूरा हमें करना ही चाहिए, तब हम पूरी तरह से हील हो पाएंगे। और सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोग करें एक्सरसाइजेस सीरियसली। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू फॉर मैनेजिंग अनिका सिस्टर। थैंक यू फॉर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग विद सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू करुणा सिस्टर। यस, ये बात एकदम सही है कि शुरू शुरू में हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है एक्सरसाइज ये सब करने में, लेकिन क्योंकि हमें हीलिंग करनी है तो हमें कंसिस्टेंट रहना है और अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज करनी है ताकि हम हील कर ले खुद को। एंड वंस वी आर हील्ड वी आर मेड अ न्यू सेल्फ ऑफ आवर सेल्फ, एंड देन वी विल शाइन इन द वर्ल्ड। ओके जी, और किसी को कुछ बोलना है? आई थिंक वी आर डन। अनुराधा सिस्टर, आप भी हैं सेशन में, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी ओम शांति। ओम आज का शांति। सेशन तो मैं एक ही चीज बोल सकती हूँ कि सारा जो रूट कॉज है, एक ही जो भी प्रॉब्लम्स है जीवन में, वो पेरेंटिंग एंड मदरहुड के कारण ही है। कि हम हाउ आर वी ब्रॉट अप, हमारा लाइक पेरेंट्स कैसे थे, माहौल कैसा था, उसी के आधार पर आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है। तो हमें उतना डीप तक जाना होगा और अपने प्रॉब्लम्स को देखना होगा एज इट इज, विदाउट यस। जजमेंट, विदाउट जजमेंट, विदाउट ओपिनियंस, एंड देन वी हैव टू पुट न्यू बिलीफ सिस्टम। तो उतना डीप जाने के लिए उतना टाइम भी तो देना पड़ेगा खुद के लिए। यस यस। या सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव हो गया है,